Hello everybody. In the previous lecture we have seen what is the Raman effect and Raman scattering. We have discussed the properties. Okay. Today see what are the we will discuss the Raman effect theoretically, and I am starting with the quantum theory. Okay. So here Raman effect is basically a scattering phenomena. You have seen an incident frequency I knew on passing through a transparent non-absorbing medium get scattered into various frequencies of higher order, same order and less order. These are called anti-Stokes lines, these are called Rayleigh lines, and these are called Stokes lines. You have seen this thing. So here we will try to justify this experimental observation theoretically. तो एक थ्योरी डेवलप करें, and we will start with Planck's theory of quantum radiation. As you can see, this is the quantum theory. So Planck's theory initially was used to explain black body radiation. Later on it was utilized by various scientists like Einstein explained the photoelectric effect on the basis of this quantum theory of radiation. And in quantum theory of radiation, we assume that light electromagnetic radiation energy is made up of packets of energy. Those are called quanta of energy, and they are named photon. If the frequency of the photon is nu, then its energy is h nu. So the electromagnetic radiation travel in terms of packet of energy, quanta of energy called photon, whose energy is given by this. Now we will see what is the cause of Raman scattering. Okay, I have told you that this scattering happen when the electromagnetic radiation of certain frequency pass through a non-absorbing मीडियम. तो इसका मतलब समझते हैं फिर से. We have a ground state, this is the excited state, and the energy gap is delta E. Okay, so you can write delta E equal to E2 minus E1, and a photon of energy h nu which is greater than delta E is incident. Okay, then it will leave the atom in a virtually excited state. Okay, that is not stable. So readily what will happen, this atom will come down leaving the photon of same frequency or different frequency. Okay class. So here we will discuss this process in terms of a collision. हम मान लेंगे ये एक तरह से एक कोलिजन है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है फोटोन का एंड मोलिक्यूल का. देखिए यहाँ पे मोलिकुलर स्पेक्ट्रा आप स्टडी करें. ठीक है. सो वी हैव ए मोलिक्यूल हियर which is in the lower possible state of energy, which is named as the ground state or the lowest energy state. So in this interaction, in this collision, three possibility are there. We are to discuss these possibility. So one is the elastic collision and another is inelastic collision. In inelastic collision can occur in two way. Okay, so firstly discuss elastic collision. So in this case the molecule will remain in its initial state after interaction with the photon. ठीक है. तो अगर इनिशियल स्टेट में, अगर ग्राउंड स्टेट में पड़ा है पहले और इंटरेक्शन किया, एग्जाइट एग्जाइट हो गया, फिर से वही फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज कर दिया और खुद ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी में मोमेंटरीली एक टेम्परेरी चेंज हुआ, बट उसने रेडीली क्विकली फोटोन को रिलीज कर दिया और फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया. ठीक है. तो इस टाइप का जो कोलिजन है, अब देखिए फोटोन भी उसी फ्रीक्वेंसी का है,
ठीक है, और जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो भी वही है जो इनिशियल थी। ठीक ठीक है, तो इसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है, और फोटोन जिस फ्रीक्वेंसी का आया था और जो फोटोन रिलीज हुआ है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन होगा इस टाइप का, दैट इज कोरस्पोंडिंग टू रेलेग ट्रांजिशन। ठीक है, अब अगर मान लो सेम थिंग कैन हैपन व्हेन द मॉलिक्यूल इनिशियली ऑलरेडी इज प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो तब भी ऐसा हो सकता है, फोटोन आए, ठीक है, वो एक वर्चुअली एक्साइटेड स्टेट में जाए और फिर से यहाँ पे आ जाए, ऑलरेडी जो एक्साइटेड स्टेट में था उसी में आ जाए, तब भी फोटोन रिलीज हो सकता है। बट इस प्रोसेस के चांसेस हैं जो वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि अगर आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है और आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसको ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है ना, बट द चांसेस ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल आफ्टर इंटरेक्शन आर टू कम डाउन इन द ग्राउंड स्टेट आर हायर। तो आप इस वाले केस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे जो हमारा रीजन बनेगा दैट विल बी when the molecule is present in the ground state, it interact with electromagnetic radiation, it go in the virtually excited state for some time, and quickly it de-excite to the initial state ground state, leaving a photon of same energy. So this is the explanation corresponding to Rayleigh lines in the spectrum. Now come to inelastic collision. So inelastic collision में क्या होगा, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल जिस एनर्जी लेवल में था उसी में पड़ा है। ठीक है, एनर्जी रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, बट इन इलास्टिक कोलिजन देयर विल बी चेंज इन द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड the molecule. So when this happen, when inelastic collision happen, then the transition will be corresponding to Raman lines. तो इसमें हमारे पास स्कैटरिंग होगी, यानी कि इनिशियली जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है और स्कैटरिंग के बाद जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी डिफरेंट। तो अब इस इन इलास्टिक कोलिजन को टू वे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ वाले दोनों केसेस हम लेते हैं। ठीक है, यानी कि इनिशियली द मॉलिक्यूल इज इन द ग्राउंड स्टेट। देखिए पहला केस लेता हूं मैं स्टोक्स लाइंस का, और स्टोक्स लाइन दिस इज कोरिस्पोंडिंग टू एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, वो एक फोटोन को कैप्चर करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। देखिए तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल गोज टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग ए एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से है। मान लो ये दो एनर्जी लेवल है मेरे पास E1 एंड E2। molecule is present initially in the ground state and a photon of energy h nu, and this energy of the photon h nu, this is greater than the energy gap, then what will happen, तो ये इस मॉलिक्यूल को एक्साइट कर देगा इस लेवल तक, है ना। दिस एनर्जी गैप दिस इज इक्वल टू h nu, and the energy gap between the energy states that is delta E। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एक हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। समझ पा रहे, धूप आ गई। ओके, तो ये मॉलिक्यूल एक हायर वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब देखिए चांसेस अगर ऐसे हों, अगर कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन हो जाए कि ये मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया, एक वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट में चला गया और फिर ये एक्साइटेड स्टेट में रह जाए। ठीक है, तो इसका मतलब इसने इस गैप के कोरस्पोंडिंग एनर्जी अब भी रखी हुई है। ठीक है, तो और ये एनर्जी गैप कितना है, डेल्टा ई है। तो अगर मॉलिक्यूल
एक्साइट हो जाए तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, डेल्टा ई। ठीक है, तो अब फोटोन जो रिलीज होगा, क्योंकि फोटोन के पास तो डेल्टा ई से ज्यादा एनर्जी थी, तो कितनी एनर्जी उसके पास रह जाएगी। देखिए, दिस एनर्जी, द एनर्जी लेफ्ट विद द फोटोन, लेट दिस इज एच न्यू डैश, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इनिशियली कितनी थी एच न्यू, और ये मॉलिक्यूल कितनी एब्जॉर्ब कर गया, डेल्टा ई के कोरिस्पोंडिंग, सो माइनस डेल्टा ई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखता हूँ, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली मॉलिक्यूल ने, अगर उसको मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखता हूँ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ h इंटू डेल्टा न्यू। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू h न्यू डैश, तो h कैंसिल हो जाएगा, सो न्यू डैश, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड फोटोन, दिस इज इक्वल टू न्यू माइनस डेल्टा न्यू, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होगी दिस इज लेस। So this is what happens in case of Stokes lines. Because थोड़ी सी adjustment खराब हो गई। Okay, now it is okay. So this is explanation for the Stokes lines. Now in case of anti-Stokes lines, anti-Stokes lines में क्या होगा, जो molecule है that is, let me rub it। तो देखिए, अब सेकेंड टाइप हम डिस्कस करें, तो स्टोक्स लाइंस में मॉलिक्यूल कहाँ पे था, ग्राउंड स्टेट में, और वो एक्साइट हो जाता है, तो ये एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। एंटी स्टोक्स लाइंस में उल्टा होता है, ये एक एमिशन प्रोसेस है, और इसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे मॉलिक्यूल है और ये ग्राउंड स्टेट है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा ई है। ठीक है, तो अगर मान लो ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल एक एच न्यू फ्रीक्वेंसी के फोटोन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये एक वर्चुअली एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसकी एनर्जी ई डैश है, सो ई डैश दिस इज इक्वल टू ई टू प्लस एच न्यू, समझ पा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आने के बाद मोर डी मोर एक्साइटेड हो गया है, मोर अनस्टेबल हो गया है, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करके अगर ग्राउंड स्टेट में आ जाए तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इट विल रिलीज, ये एनर्जी लेवल क्या है ई डैश, और कहाँ पे चला गया ई वन में, तो माइनस ई वन। ठीक है, अब मैं ई डैश की वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए, तो इस एनर्जी गैप की कोरिस्पोंडिंग आपको एक फोटोन मिलेगा, इसको मैं न्यू डबल डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं सोल्व करूं तो मेरे पास देखिए, अब मैं ई डैश की वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, ई टू प्लस एच न्यू माइनस ई डैश, तो मेरे पास आ जाएगा ई टू माइनस ई वन प्लस एच न्यू। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एच न्यू डबल डैश, तो ये एनर्जी कितनी है, this energy is equal to delta E, so delta E plus h nu, this is equal to h nu double dash, और अगर इसके कोरिस्पोंडिंग मैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में इसकी वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास क्या जाएगा, देखिए डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं, h डेल्टा न्यू, देन यू हैव प्लस h न्यू, दिस इज इक्वल टू h न्यू डबल डैश, तो h कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted photon that is equal to new frequency of incident photon plus delta nu, तो देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन इज हाई। ठीक है, तो ये चीज जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है वही चीज मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखी है, देखिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें यहाँ पे बना के दिखाई हुई हैं, इसको पॉज करें, समझें, नहीं समझ आता है तो कमेंट करें, पूछें मेरे से, कॉल करें। ये वाला जो केस है इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, तो ये वाला जो ट्रांजिशन है दैट इज मेन इन केस ऑफ रेले लाइंस। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ये जो मैंने ई डैश यहाँ पे बनाया हुआ है ये डॉटेड लाइन है, दिस इज ए वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट, ये भी एक वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट होगा।
ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी इसकी सेकंड नंबर पे, सबसे ज्यादा रेलेग लाइंस की और सबसे कम एंटी स्टोक्स लाइंस की, बट इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो फिर से लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ रेलेग लाइन इज मैक्सिमम, then come to intensity of Stokes lines, then come to intensity of anti Stokes lines। और अगर एनर्जी वाइज इनको अरेंज करूं तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन्स इज हाईएस्ट, देन कम टू रेलेग लाइन्स, देन कम टू एनर्जी ऑफ स्टोक्स लाइन्स, इनकी सबसे कम होती है। ठीक है क्लास, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, अब इसका स्पेक्ट्रम रोटेशनल वाइब्रेशनल है, कैसा होगा, क्यों होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।